वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं प्रोफेसर सीए रोहित श्रॉफ एंड आई वेलकम यू टू द लास्ट लेक्चर, प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ योर फाइनल सीए। होप करता हूं कि अगले टाइम जब हम मिले तो आई विल नॉट मीट यू एज अ स्टूडेंट बट एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इस आखिरी लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारी May 22 की आरटीपी। अब हम आगे बढ़े, ये डिस्कशन आगे बढ़ाए उसके पहले एक डिस्क्लेमर। इस आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने मेजॉरिटी जो भी अपडेट्स या अमेंडमेंट्स दिए हैं May 21, नवंबर 21 या इवन May 22, ये तीनों अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में जितने भी चेंजेस किए हैं मोर और लेस पूरी आरटीपी उसी के ऊपर फोकस कर दी है। तो आई वुड इंसिस्ट रादर कि ये आरटीपी को कृपया करके ओवरलुक ना कीजिए, पूरी की आरटीपी एक बार देख लीजिए। आई एम नॉट सेइंग द आरटीपी इज डिफिकल्ट, द आरटीपी इज क्वाइट मैनेजेबल, बट हो सकता है कि शायद आपने ये कंटेंट देखा ना हो, तो प्लीज ये आरटीपी को एक बार डेफिनेटली गो थ्रू कीजिए। So without wasting any time, let us move ahead with our next question, that is the integrated case study. Messrs. JKL and Associates, Chartered Accountants, were acting as the statutory auditors of Messrs. IBS Bank Limited. During the statutory audit for the relevant financial year, the following observations were made. Interest income included 5 lakh rupees relating to a short-term crop where the installment was overdue for 1 crop season। अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे हम इसे एनपीए कब कहेंगे, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप को, जब 2 क्रॉप सीजन तक पैसा नहीं आया। तो क्या ये एनपीए है? नहीं। ₹7 lakhs relating to the advance guaranteed equally by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये क्या होगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, मतलब क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, वेर द इंस्टॉलमेंट वॉज ड्यू फॉर मोर देन 6 months। अब 6 महीने से ज़्यादा है तो क्या एनपीए हो चुका है? यस। बट सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देता है तो क्या हम उसे एनपीए ट्रीट करेंगे? नहीं। बट लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या उसे कहेगा तो क्या उसे हम एनपीए ट्रीट करेंगे? यस डेफिनेटली। तो स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे भाई, एनपीए। तो 7 लाख में से 3.5 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था वो एनपीए नहीं है, पर क्या बाकी का 3.5 लाख एनपीए हो जाएगा? यस। तो इसमें से 3.5 लाख क्या हो जाएगा? एनपीए। अ मंथ ओल्ड एनपीए वर्थ ₹43 lakhs was sold to an asset reconstruction company for 45 lakhs. The profit from the above transaction was taken to the profit and loss account. The above NPA was sold without recourse and on the cash basis. The auditors noticed a discrepancies in the transaction and hence decided to report the same. After completing the bank audit, JKL and Associates agreed to take up the following management consultancy and other services for one of the startup based company in Noida. यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या क्या काम करने वाले हैं? सेटिंग अप एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान एंड वेज इनिशिएटिव, फिक्सेशन एंड अदर मैनेजमेंट डिसीजंस, कंडक्ट अ पीरियोडिकल एंड एडवाइजर फॉर टैक्स मैटर्स. Mr. K, one of the partners of the firm, felt that providing the same above services could result in professional misconduct. Hence, he resigned from the partnership and became a sole practitioner. One of the clients of JKL Associates came to know about the issue and they approached Mr. K to conduct the statutory audit of the financial year. Mr. K took up the assignment without informing the previous firm. Annoyed by this, Mr. J filed a complaint to ICAI regarding the act of Mr. K. After inquiring, it was decided that Mr. K was guilty of professional misconduct. After this incident, Mr. K also decided to file a complaint against Mr. J when he was thinking about a reason for the same. He remembered that Mr. J had entered into an agreement with 2 article clerks to pay stipend on a regular basis, while others paid on a monthly basis. Realizing that this act is in violation of Regulation 48 of the Act, he filed a complaint to ICAI. After inquiring, it was found that Mr. J was found guilty of misconduct. On the basis of the above mentioned fact, you are required to choose the most appropriate answer. Pehla question. From the above facts and details, what is the correct amount of interest which the bank should account in the financial statement? तो भाई मैं कितना इंटरेस्ट को यहाँ पे बताऊंगा? देखो यहाँ पे पहला वाला क्या एनपीए हुआ है क्या? नहीं। यस ठीक है।
क्या ये दूसरा वाला एनपीए नहीं हुआ है, बट याद करो भले सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, क्या मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करूंगा? नहीं करूंगा। तो क्या ये 7 लाख रुपीस को बताऊंगा? नहीं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कितने को बताऊंगा? 5 लैक्स। ठीक है, तो मैं मेरे बुक्स में कितना बता देगा? 5 लैक्स। नेक्स्ट, what would be the possible amount classified as NPA relating to the accounts with respect to the observation regarding the inclusion of interest income given below? अब ये 5 लाख रुपीस को क्या हम एनपीए करेंगे? नहीं करेंगे। याद करो ये 1 क्रॉप सीजन तक था। फिर 7 लाख रुपीस टू एन एडवांस equally by the central government and by the state government where the installment was due for more than 6 months, तो ये एनपीए होता है। बट लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एनपीए नहीं कर सकते। तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके, इसका 50%, 7 लाख का 50% मतलब 3.5 लाख रुपीस क्या हो जाएगा? एनपीए। नेक्स्ट, in a sale, in NPA, sale to asset reconstruction company, what a discrepancy auditor might have noticed. The NPA had not completed in 30 months. नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे NPA कितने टाइम में कर लिया गया है? अगर देखें तो 25 मंथ्स के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वो लोग ने क्या बोला हुआ है? सेल वॉज मेड विदाउट रिकोर्स। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वॉज मेड फॉर कैश बेसिस, उसी के हिसाब से होना चाहिए, विदाउट रिकोर्स ही होना चाहिए। द प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakhs वॉज टेकन टू PNL। ये नहीं कर सकते। अरे जो भी यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल तुमको एनपीए में जो बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है, वो लोग क्या कहते हैं कि आगे जाके जो शॉर्टफॉल होगा उसके सामने एडजस्ट करो। क्या इसको सीधा तुम पीएनएल में लेके जा सकते हो? क्या नहीं। तो इसको तुम पीएनएल में लेके जा सकते नहीं हो। तो यहाँ पे ये वाली चीज के अंदर दिक्कत थी, इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट शॉर्टफॉल। तो एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जिन जिन को ये नहीं आया तो एक अमेंडमेंट का लेक्चर भी है, ठीक है, रिकॉर्डेड आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका होगा। उसमें बैंक ऑडिट में भी वो लोग ने काफ़ी छोटे मोटे पॉइंट्स ऐड किए हैं। दिस इज वन सच पॉइंट्स। तो वो नोट्स को कृपया करके एक बार डेफिनेटली रिफर कीजिए। फिर क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं? बीइंग गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट फॉर मिस्टर के विल बी सब्जेक्ट टू? अब मिस्टर के ने नहीं क्या क्या नहीं किया था भाई? पहले वाले ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट नहीं किया था, तो वहां पे वो गिल्टी हो जाएगा इन द फर्स्ट शेड्यूल। किसके अंदर? फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या किया जा सकता है? रिप्रीमेंड किया जा सकता है। फिर उसे क्या किया जा सकता है? पेनल्टी लगाया जा सकता है। कितना लगाया जा सकता है? अप टू ₹1 लाख, और 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या बोला है? रिमूव द नेम फ्रॉम द रजिस्टर फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। पेनल्टी ऑफ रुपीस लिखा हुआ है, ठीक है, अप टू 1 लाख है, उसके नीचे वो लोग जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो क्या ये हो सकता है? यस। रिमूवल ऑफ हिज मेंबर्स फ्रॉम द पीरियड दैट ही थिंक्स डीम्स फिट। नहीं ना, मैक्सिमम कितने पीरियड तक निकाल सकते हैं? 3 महीना। तो ये भी हो सकता है। पेनल्टी अप 2 लाख रुपीस, नहीं, अप टू 1 लाख होता तो ये हो जाता। तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। Being guilty of professional misconduct, which among the following punishment will be subject to? तो अब यहाँ पे जे के लिए कहाँ पे था? सेकेंड शेड्यूल के अंदर। तो सेकेंड शेड्यूल में पेनल्टी कब तक होता है भाई? 5 लाख रुपए तक। तो अप टू 1 लाख तो नहीं होगा। फिर बाद में रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर परमानेंटली, क्या निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। अप टू 3 लाख नहीं चलेगा। 6 लाख तो नहीं हो सकता बिकॉज अप टू 5 लाख रुपीज है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, दैट इज रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स परमानेंटली। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेटेड केस स्टडी। Moving ahead with independent MCQs, Moon Limited is a company engaged in manufacture of iron and steel bars. VP and associates are the statutory auditors of Moon Limited for the financial year 21-22. During the course of audit, CA Vikas, the engagement partner, found that the company's financing arrangements have expired and the amount outstanding was payable on 31st of March. The company has been unable to renegotiate or obtain replacement financing and is considering filing for bankruptcy. These events indicate a material uncertainty that may cast a doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and therefore it may be unable to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business. The financial statements do not disclose this fact. What opinion should CA Vikas express in his case of Moon Limited? अब यहाँ पे वो लोग ने क्या बोला कि अपने असेट्स नहीं बेच पाएंगे, वो लोग कंसिडर कर रहे हैं फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी। एक क्या एग्जिस्ट कर रही है? मटीरियल अनसर्टेनिटी।
तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स मटीरियल अनसर्टेनिटी लिख के सिर्फ यही बोल देते हैं कि या तो क्वालिफाइड जाएगा या तो एडवर्स जाएगा, पर लेकिन यहाँ पे और वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। यहाँ पे हम कौन सा ओपिनियन दे देंगे? एडवर्स। तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर मटीरियल अनसर्टेनिटी में तो हम एडवर्स देते ही नहीं है। अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी में हमें लग रहा है कि भाई एक डिस्क्लोजर देना है, दे आर फाइलिंग फॉर व्हाट बैंक्रप्सी, तो समवेयर हमें पता है कि गोइंग कंसर्न के ऊपर इम्पैक्ट है, नहीं दिया तो ये मटीरियल एंड परवेसिव है। अब यहाँ पे आई एम टेकिंग यू टू द प्रोनाउंसमेंट। अब प्रोनाउंसमेंट में जाओगे, यहाँ पे वो लोग ने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, पढ़ो ये वाला एग्जाम्पल। Based on the audit evidence obtained, the auditor has concluded that material uncertainty exists related to events and conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and the entity is considering bankruptcy. The financial statement omit required disclosure to material uncertainty. Adverse opinion is being expressed because the effect on the financial statement of such omission are material and pervasive. तो ये इतना फंडामेंटल डिस्क्लोजर है जिसके ना होने की वजह से यूजर्स को पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपको याद हो ऐसे 705 जहां पे मैंने सिखाया था व्हाट इज परवेसिव। परवेसिव 3 केसेस में हो सकता है। अगर समझो एक सिंगल अकाउंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, मल्टीपल अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है। एक सिंगल एलिमेंट को अफेक्ट कर रहा है बट उसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, या तो ऐसा कोई डिस्क्लोजर है जो यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत फंडामेंटल है, ये तीसरा वाला केस है। तो यहाँ पे द मैटर इज मटीरियल एज वेल एज परवेसिव, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा ओपिनियन दे देंगे? एडवर्स ओपिनियन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। क्या देंगे हम यहाँ पे? एडवर्स ओपिनियन। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, the term technical standard in context of the chartered accountant rules 2006 which of the following, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कौन सी चीज टेक्निकल उसमें आती है? ICDS जो इनकम टैक्स एक्ट ने दिया है, अरे याद करो पीयर रिव्यू, जिसने उसका अमेंडेड लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज कृपया करके उसे भी जाके देखे। तो क्या ICDS में आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर कंपनीज एक्ट, यस आता है। गाइडेंस नोट ऑन द अकाउंटिंग एंड द ऑडिटिंग मैटर इशूड बाय कैग, नहीं। नोटिफिकेशन डायरेक्शन ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर्स इशूड बाय RBI, अरे ICAI की बात होती तो बात अलग है। तो यहाँ पे हमारे टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट आर इशूड अंडर द कंपनीज एक्ट। अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्किल्स टू बी possessed by ABC and associate as forensic auditor? तो अगर तुम फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हो तो तुम में कौन से स्किल्स होने चाहिए? क्रिमिनल एंड एविडेंस गैदरिंग, यस डेफिनेटली होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल एंड क्यूरियोसिटी, डिस्क्रिशन एंड क्रिएटिविटी, इंक्विजिटिवनेस एंड परसिस्टेंस, यस वो भी सारी चीजें होनी चाहिए। बट लेकिन सबसे ज्यादा रेलेवेंट यहाँ पे हमारे लिए कौन सा पॉइंट है? क्रिमिनोलॉजी एंड एविडेंस गैदरिंग। तो भाई हमारा क्रिमिनोलॉजी के ऊपर क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक क्राइम डिटेक्ट कर रहे हैं इन केस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। तो यहाँ पे द अप्रोप्रिएट आंसर इज गोइंग टू बी ए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है भाई मैच द फॉलोइंग, बचपन की याद दिला दी। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है? It is an approximation of a monetary amount in absence of precise means of measurement। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ चुके हैं समरी बुक में जाइए, वहां पे देखिए सबसे पहले ये सारे के सारे हमने क्या लिखा है? डेफिनेशन। तो वहां पे से आपको मिलेगा कि यहाँ पे ये पहला वाला क्या है? इट इज नथिंग बट अकाउंटिंग एस्टिमेट। व्हाट इज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी? एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है? ससेप्टेबिलिटी of an accounting estimate and related disclosure to inherent lack of precision, कि भाई एक precision नहीं आएगा, इसे हम क्या कहते हैं? estimation uncertainty। फिर उसके बाद management bias क्या है? a lack of neutrality by the management in preparation and presentation of financial information। मतलब management neutral नहीं है, biased है, इसी तो को हम क्या कहते हैं? management biasness। measurement objective of the fair value accounting estimate। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा भाई? टू फॉरकास्ट आउटकम ऑफ वन और मोर ट्रांजैक्शन इवेंट्स और कंडीशन। तो मैच द कॉलम देखो, 1 के सामने क्या था? 3, ठीक है। 2 के सामने क्या था भाई? 1। 3 के सामने क्या था? 2 एंड 4 के सामने क्या था? 4। तो यहाँ पे आंसर पहला वाला ही करेक्ट ऑप्शन दे दिया है, तो नीचे की चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। तो ये हमारे क्या थे? MCQs। आगे बढ़ते हैं विद द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। पहला वाला जो प्रश्न है किसके ऊपर है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ महावीर लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, engagement partner completed his review
and also ensured compliance with the independence requirement to apply to the audit engagement. The engagement files were also reviewed by the engagement quality control reviewer. तो भाई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी है, मतलब इन शॉर्ट ये क्या होगी, लिस्टेड कंपनी. एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंस असेसमेंट, engagement partner was of the view that the matters related to independence are the responsibility of the engagement partner and not the engagement quality control reviewer. The engagement quality control reviewer objected to this and refused to sign off the documentation. Please advise as per SA 220. क्या ये सही है? अरे भाई माना एंगेजमेंट पार्टनर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंस असेसमेंट करे, उसकी लीडरशिप जिम्मेदारी होती है एज पर 220, बट लेकिन एज पर 220 क्या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये असेस कर सकता है? यस, डेफिनेटली कर सकता है. तो यहाँ पे जो एंगेजमेंट पार्टनर का जो कंटेंशन है वो गलत है. तो एज पर SA 220 engagement partner shall form a conclusion on compliance with the independence requirement that apply to the audit engagement. यहां पे वो क्या करेगा? obtain करेगा relevant information. क्या obtain करेगा? relevant information from the firm and where applicable the network firms to identify and evaluate the relationship that create threats to independence. तो ये देखने की जिम्मेदारी उसकी, हम देख चुके हैं सब 220 में. evaluate करो the information and identified breaches if any on the firm's independence, फिर take appropriate action to eliminate such threat. तो ये सब कुछ हम 220 में पढ़ चुके हैं. आगे यहाँ पे क्या बोला है कि engagement partner जो है he will take the responsibility that review is being performed as per the firm's review and the policy procedures. बट साथ ही साथ ऐसे 220 क्या कहता है कि इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो होता है उसकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो चेक क्या करेगा कि जो भी इंडिपेंडेंस की फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है क्या हम उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पे इन द गिवन केस एंगेजमेंट पार्टनर इज नॉट राइट. द इंडिपेंडेंस असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी गिवन टू द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा कि दोनों देखेंगे? दोनों देखेंगे. तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर अपने अप्रोच में सही नहीं था. नेक्स्ट, Messrs. Manidhari and Associates have been appointed as the auditor of Jin Limited, a multinational company dealing in spare parts. During the course of audit, CM Manidhari is facing many problems, including the problem of not getting the desired information from the management. Accordingly, he decided to communicate to those charged with governance about the significant difficulties encountered during the audit. CM Manidhari seeks your advice on matters which can be considered as significant difficulties. तो भाई SA 260 देखोगे तो RTP ने चुन चुन के ऐसे स्टैंडर्ड्स निकाले हैं जिसके ऊपर तुम फोकस नहीं करते हो. ये 220 और ये 260. अरे ये हमारे नोट्स के अंदर का आंसर है कि कौन से मैटर्स को सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कहते हैं जिसके ऊपर हमें क्या करना होगा, उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी. तो भाई कौन से मैटर्स हो सकते हैं? कहीं पे सिग्निफिकेंट डिले किया गया है बाय द मैनेजमेंट, या अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एंटिटी पर्सनल और अनविलिंगनेस बाय द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स. तो अननेसेसरी डिले कर रहे हैं, या जो बंदा है जिससे पूछताछ करनी है वही नहीं है, मैनेजमेंट अनविलिंग है. तो भाई ये सारी चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, जो मेरे को जाके किसके साथ चर्चा करनी पड़ेगी? TCWG के साथ. फिर अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम गिवन विद इन विच टू कंप्लीट द ऑडिट. तो मैनेजमेंट ने भाई मेरे को पहले ही बोला इतने ही टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा, तो मैं किसके पास जाएगा? TCWG के पास. फिर एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस. अरे मतलब एक चिंदी सा सबूत था जो आसानी से हर जगह पे अवेलेबल होता है, वो चिंदी सा सबूत ढूंढते ढूंढते मेरी मेहनत हो चुकी है जो मेरे को मिल नहीं रहा है. अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन. अरे नॉर्मल फिक्स्ड एसेट रजिस्टर तो तेरे उधर होना चाहिए, वो भी मिल नहीं रहा है. अगर वर्कर्स है तो भाई उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने ने ओवर टाइम किया है, कितना एब्सेंटिज्म है, ये रिकॉर्ड भी तेरे उधर नहीं है. तो ये तो एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन है भाई, छोटी छोटी चंदी चिंदी कंपनी रखती है, क्या तेरे पास नहीं है? फिर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द ऑडिटर बाय मैनेजमेंट. ये हम 210 से बात कर रहे हैं कि जब भी मैनेजमेंट हमारे ऊपर क्या डालेगा? रोजा क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट. तो हम किसके पास चले जाएंगे? TCWG. लास्टली, मैनेजमेंट बाय प्रिलिमिनरी असेसमेंट ही नहीं कर रहा है गोइंग कंसर्न का. तो याद करो 570 में भी बोला था कि अगर मैनेजमेंट प्रिलिमिनरी असेसमेंट नहीं करेगा तो हम किसके पास चले जाएंगे? तो चार्ज विद गवर्नेंस के पास. इन सम सर्कमस्टेंसेस
Such difficulties may constitute a limitation on scope and that may lead to a modified opinion as per 705. तो यहाँ पे हो सकता है कि इसको हम लिमिटेशन मान लें और उसके वजह से मेरे को ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ लिमिटेशन मैं क्या नहीं ढूंढ पा रहा हूँ भाई, सबूत नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, CA Abhinandan is the auditor of KM Private Limited. During the course of audit, CA Abhinandan becomes aware of information concerning an instance of a non-compliance or suspected non-compliance with law and regulation. Being a senior partner of CA Abhinandan, guide him regarding the audit procedures to be followed when a non-compliance is identified or suspected। अरे मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसे पूछ लिया भाई, ऐसे 250 वापस ऐसा स्टैंडर्ड जो पब्लिक 200 सीरीज के ऊपर फोकस नहीं करता, और तीनों के तीन आरटीपी के क्वेश्चन किसके ऊपर है, 200 सीरीज, 220, 260 एंड 250। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी हम कर चुके हैं कि अगर नॉन कंप्लायंस है तो हमें इन दैट केस क्या करना होगा। तो पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी कि कौन से लॉ का तूने उल्लंघन किया है एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच इट हैज़ अकर्ड। फिर बाद में इवैल्यूएट करके इसके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होंगे ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर को लगता है कि नॉन कंप्लायंस है तो ऑडिटर ये किसके साथ डिस्कस करेगा, मैनेजमेंट के साथ एंड TCWG के साथ। ठीक है, और फिर बाद में उनके पास से भाई पूछेगा कि भाई ये नॉन कंप्लायंस क्यों था, तो ये सारी चीज़ें उनके पास देखो और देखो क्या इसके ऊपर कोई मटेरियल इफेक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर काफ़ी बार कैसा होगा कि उनको क्या लेना पड़ेगा, एक लीगल एडवाइस के इन दिस केस क्या करें। इफ़ द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ रिस्क ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो अगर मेरे को सबूत नहीं मिलता है तो मेरे को देखना पड़ेगा इसका वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है मेरे को वापस क्या करना पड़े, अपना ओपिनियन मॉडिफाई। द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस इन रिलेशन टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ ROMMS। अब मेरा ROMMS भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर नॉन कंप्लायंस है और अगर वो इंटेंशनल नॉन कंप्लायंस है तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड भाई सिर्फ यही नहीं, मेरे को जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अब तक मिले हैं उसके ऊपर भी शक होने लगेगा, क्योंकि अब मेरे को किसके ऊपर शक होने लगा है, मैनेजमेंट के नियत के ऊपर कि नॉन कंप्लायंस है तो अगर जानबूझ के कोई लॉ का उल्लंघन किया हुआ है तो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा वो भी शायद सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, 250। वापस एक नया सवाल पूछा गया जो स्टैंडर्ड पब्लिक फोकस नहीं करता है, विच इज नथिंग बट ऐसे 450। देखो क्या कहता है, इन द ऑडिट प्लान फॉर क्षेत्रपाल लिमिटेड एज द ऑडिटर यू वांट टू हाईलाइट द सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट। क्या हाईलाइट करना चाहता है भाई तू, सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम अदर देन फ्रॉड। तो फ्रॉड को छोड़ के और कहां से हो सकती है। सी क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल बट समवेयर दे हैव पिक्ड अप ऑन पॉइंट्स जो पब्लिक क्या करता है, इग्नोर करता है। ये हर वो स्टैंडर्ड से सवाल पूछे गए हैं जो स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते। स्टूडेंट्स क्या करते रहते हैं, ऐसे 500, ऐसे 600 सीरीज, 700 सीरीज, बट 200 और 400 एंड एज वेल एज 300 एट टाइम्स थोड़ा सा निगलेक्टेड रहता है और सिंपल सवाल उठाए हैं। बट अगर आपने स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आपकी बैंड बजनी है। तो अब यहाँ पे हमारे सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, अदर देन फ्रॉड, इनअक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो गैदरिंग और प्रोसेसिंग में गड़बड़ हो गई तो भाई गड़बड़ होनी है। ओमिशन ऑफ एन अमाउंट और डिस्क्लोजर, तो कोई एक इंपॉर्टेंट अमाउंट या डिस्क्लोजर जो था उसे ओमिट कर दिया गया, तो ये भी क्या है, पॉसिबल सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट। इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट अराइजिंग फ्रॉम ओवरलुकिंग और क्लियर मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट। तो एस्टिमेट्स को भाई हम लोग ने क्या कर दिया, गलत कर दिया, क्योंकि मैंने कोई फैक्ट को ओवरलुक कर दिया या मिसइंटरप्रेट कर दिया। जजमेंट्स of the management concerning the accounting estimate that the auditor considers unreasonable और सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ऑडिटर कंसिडर्स इनअप्रोप्रिएट। तो जो भी मैनेजमेंट ने जजमेंट लिए है मेरे को क्या लग रहा है, अनरीजनेबल है। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी से लोग ने सिलेक्ट किए हैं मेरे को क्या लग रहा है, इनएडिक्वेट है। तो ये सारे हमारे सोर्सेस है। अब ये सारी चीज़ की मैं गहराइयों में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं वही आंसर्स की गहराई में जाऊँगा जो हम लोग नहीं कर चुके हैं। तो ये जो भी चीज़ हमारे नोट्स के अंदर ऑलरेडी है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स के भी एक्सेस आपके पास है।
अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो वो online.jksc.com पे जाके क्या कर सकता है, चैप्टर वाइज भी इसे परचेज कर सकता है। और अगर पूरा बाकी है तो पूरा कोर्स भी, क्रैश कोर्स या फास्ट ट्रैक, आई मीन फुल कोर्स, जो आप बाय करना चाहो कर सकते हो। बट लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, ये हम सारी चीज़ें डिटेल में कर चुके हैं। तो अगर आपको यदि याद नहीं आ रही है तो आपके पास आपका रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है आपके पोर्टल के ऊपर, तो प्लीज़ कृपया करके उसे एक बार देखें। नेक्स्ट, वापस एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया जो थोड़ा सा वापस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इग्नोर। तो इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अंबिका लिमिटेड, its auditor wants to rely on the audit evidence obtained in the previous audit in respect of the effectiveness of internal control instead of retesting the same. As an auditor, kindly caution them of the factors that may warrant a retest of control. वापस एक ऐसा प्रश्न जो हम कर चुके हैं, बट एक वापस एक ऐसा स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोर। तो भाई 330 में कौन से फैक्टर्स वारंट करते हैं कि हमें वापस क्या करना चाहिए, रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो एक डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट एक बेस स्ट्रक्चर होता है। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिशिएंसी है तो बाकी के सारे कंट्रोल्स के सही से चलेंगे नहीं। तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया, एक फैक्टर के रीटेस्ट करना पड़ेगा। डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट टू द रेलेवेंट कंट्रोल। अब मैनुअल एलिमेंट इन्वॉल्व है तो मैनुअल एलिमेंट में हमेशा एक रिस्क रहेगा कि यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। पहले वाले साल में कोई और कर रहा था, ये वाले साल में कोई और कर रहा है, तो मैनुअल एलिमेंट को हमेशा वापस रीटेस्ट करना पड़ेगा। पर्सनल चेंजेस दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, मतलब ये इसी पॉइंट के ऊपर रिलेटेड है। अरे मैनुअल एलिमेंट ज़्यादा है तो बंदा चेंज हो गया तो भाई सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल को, तो वापस मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, रीटेस्ट करना पड़ेगा। चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज दैट नीड फॉर द चेंजेस इन द कंट्रोल, सर्कमस्टेंस चेंज हो गए, या तो डेफिशिएंट और जनरल आईटी कंट्रोल। वापस जनरल आईटी कंट्रोल वो होता है जिसके ऊपर बाकी सारे कंट्रोल्स चल रहे हैं। जनरल आईटी कंट्रोल्स में प्रॉब्लम तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स के अंदर प्रॉब्लम, फिर मैनुअल कंट्रोल्स के अंदर प्रॉब्लम, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स के अंदर प्रॉब्लम। तो ज़रूरी है कि हमारे जो भी जनरल आईटी कंट्रोल्स है वो सही हो। अगर उसके अंदर डेफिशिएंसी दिख रही है तो मुझे वापस इसे क्या करना पड़ेगा, रीटेस्ट। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे स्टैंडर्ड बेस, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमारे नोट्स में नहीं है और हम ना कर चुके हो, बट लेकिन दे हैव पिक्ड अप द स्टैंडर्ड्स जो काफ़ी बार तुम इग्नोर करते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ से सीखने की क्या है कि प्लीज़ फोकस ऑन योर ऐसे 200, 300 एंड 400 एज मच एज यू फोकस ऑन योर ऐसे 500, 700 एंड 600। तो ये हमारे क्या हो गए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। फिर आता है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। यहाँ पे एक नए कंसेप्ट के बारे में पूछा गया है, दैट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट, जो नवंबर 21 में क्या था, मॉड्यूल में एक नया अपडेट। तभी से मैं बताते आ रहा हूँ कि भाई ये एग्जाम में आने की संभावना है। कंसेप्ट ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल चीज़ ही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, सिर्फ उसको एक लेबल लगा दिया गया है, दैट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर पे जाते। पदम लिमिटेड is engaged in the business of manufacturing of carpets. The company is planning to expand and diversify its operation. The management has increased its focus on the internal control to ensure better governance. The management discussed with the statutory auditors to ensure the steps required to be taken so that the statutory audit is a risk-based and focused on areas of greatest risk to achieve the company's objective. Name the key steps taken and the phases involved in risk-based. Also discuss the steps to be taken for the risk assessment phase of audit. अब देखो, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू नॉर्मल ओपन ऑडिट जो करते हैं, ये हम ऑलरेडी नवंबर 21 के अमेंडमेंट लेक्चर्स के वक्त देख चुके थे, बट फिर भी एक और बार इसे देखते हैं। द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज अ रिस्क बेस्ड ऑडिट इज टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस। अरे भाई यहाँ पे रिस्क बेस्ड ऑडिट में भी हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव, कि हमें क्या करें, एक रीजनेबल अश्योरेंस दे दैट नो मटीरियल मिसटेकमेंट वेदर बाय फ्रॉड और एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके लिए हमारे 3 अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले असेस करना भाई, ROMMS। अरे भाई पहले भी यही स्टेप हुआ करता था, हम पहले क्या देखना चाहते हैं, ROMMS, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बिकॉज बेस्ड ऑन ROMMS ही तो हम अपना क्या डिसाइड करेंगे, NTE। तो डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अरे इन शॉर्ट दिस इज नथिंग बट आर NTE।
that respond to the assessed risk and reduce the risk of material misstatement in the financial statement to acceptably low level. एंड फाइनल इसके बेसिस के ऊपर हम क्या दे देना चाहता है, अपना एक ऑडिट रिपोर्ट. तो हम क्या देना चाहता है, एक कंक्लूजन, मतलब अपना ऑडिट रिपोर्ट. तो यहाँ पे ये देखो, यही चीज़ करते थे हम नॉर्मल ऑडिट में भी. पहले ROMMS जो रैप होता था, रैप के बेसिस के ऊपर हम फैप लगाते थे और फाइनली क्या देते थे, अपना रिपोर्ट. तो रिस्क बेस्ड ऑडिट में 3 चीज़ें होती है, पहला रैप, फिर रिस्क रिस्पॉन्सेस मतलब नथिंग बट योर फैप, एंड फाइनली हमारा रिपोर्टिंग. तो रिस्क असेसमेंट फेज ये हमारा ऊपर हो गया रिस्क बेस्ड ऑडिट. अब दूसरा जो सवाल था, ये लोग क्या पूछ रहे थे कि अरे रिस्क असेसमेंट फेज बताओ. तो अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि भाई हमारे रिस्क असेसमेंट फेज में क्या क्या होता है. तो देखना कि हम क्लाइंट को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ये चीज़ हम लोग ने कहाँ पर सीखी है, SQCN 220 में. फिर प्लानिंग द ओवरऑल एंगेजमेंट. ठीक है, तो प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग में ही आएगा रिस्क असेसमेंट के वक्त. परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड द एंटिटी एंड द इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क. तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम रैप लगा रहे हैं जस्ट सो दैट वी अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. Identifying the relevant internal control procedures and assessing their design and implementation. फिर assessing the ROMMS in the financial statement level, also at the assertion level. फिर identifying the significant risk that requires special audit consideration. तो ऐसे कौन से significant risk है जहाँ पे ज़्यादा audit procedures लगानी पड़ेगी. Communicating material weakness in design and implementation to TCWG. याद करो internal control में है कोई भी problem तो हम जाके किसको बताते हैं, ये TCWG को as per 265. and making informed assessment of ROMMS at the financial statement as well as the assertion level. तो ये हमारा बेसिक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर था. और ऊपर जो रिस्क बेस्ड ऑडिट भी बोला वो एज सच कुछ नया नहीं था, हम समझ चुके हैं इसे, सिर्फ इसको अलग से एक टर्मिनोलॉजी दे दिया गया है. बट स्टिल इट विल बी इंपॉर्टेंट क्योंकि नवंबर 21 का ये क्या है, अमेंडमेंट. नेक्स्ट आता है भाई, दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द डेटा एनालिटिक्स. You came to know that the data stored and processed in the system can be used to get various insight into the way the business operates in automated environment. In the view, this data can be useful for the preparation of the management information system reports and electronic dashboards that give a high level of snapshot on the business performance. In the view of above, you are required to discuss the meaning of data analytics, an example of circumstances when auditing an automated environment, auditor can apply the concept of data analytics. तो भाई data analytics के तो तुम प्रो हो, इंटर में भाई बहुत ज़्यादा अच्छे से कर चुके हो, और फाइनल के लेक्चर में भी हम इसके ऊपर जिक्र कर चुके थे कि दिस इज़ वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. तो भाई यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, तो जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रॉ. क्या जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रॉ सिस्टम डेटा यूजिंग प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक को हम क्या कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स. तो डेटा एनालिटिक्स को हम हमारे ऑडिट में जब लगाते हैं उसका नाम कैट हो जाता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक. तो हम बहुत सारे अलग अलग सेवरल स्टेजेस के ऊपर लगा सकते हैं. तो व्हेन ऑडिटिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑडिटर कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स एट सेवरल ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग प्रिलिमिनरी असेसमेंट, risk assessment, control testing, non-standard journal testing, evaluation of deficiencies and fraud risk. वापस ये एक ऐसा आंसर है जो हम ऑलरेडी हमारे उसमें कर चुके हैं. अब यहाँ पे कंपनी ऑडिट में ये लोग ने सवाल पूछ लिया किसके ऊपर, LLP के ऊपर. तो आई नो कि भाई स्टूडेंट्स को ये आता होगा, तुम अच्छे से पहले इंटर में कर चुके हो, पर पब्लिक को CA फाइनल की चीज़ें याद नहीं है, तो इंटर की चीज़ें याद होना ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है. तो ये आंसर को एक बार गो थ्रू डेफिनेटली करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, AMC LLP is a newly set up LLP. The operation of the LLP have been picking up and the management is currently process of setting up processes and procedures in place. As per the understanding of the management of the LLP, its account would not be required to be audited because of its operation, but still the management has decided that they would get the accounts audited voluntarily. तो भाई एज सच करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन वो लोग वॉलेंटरीली बोल रहे हैं. In this regard, the management would like to understand some of the aspects which they should consider not only limited to audit but also to the maintenance of books of accounts as per the relevant laws. तो audit के बारे में and books of accounts के बारे में बताओ LLP में. तो भाई अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर की अगर हम बात करें तो LLP में जो पहला ऑडिटर होता है उसको कब अपॉइंट करना चाहिए, एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. मतलब 31 मार्च के पहले कर दो, कोई भी दिन पे करो चलेगा.
जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर है उसको पूरा साल होने के एटलीस्ट 30 डेज पहले कर दो। अरे यहाँ पे तो 31 मार्च के पहले कर रहा था फर्स्ट ऑडिटर को, बट जब मैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहा हूँ एटलीस्ट कितने दिन पहले कर, ईयर समाप्त होने के 30 डेज पहले। कैजुअल वैकेंसी होगी तो कौन फिल करेगा भाई? नॉर्मल जो वो लोग का डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कौन कर देगा? दूसरा कोई भी पार्टनर। तो कैजुअल वैकेंसी कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो नहीं कर पाया तो दूसरा कोई कर देगा। अब एलएलपी को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ेंगे? तो पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल द मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द एलएलपी, फिर अ रिकॉर्ड ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, इन्वेंट्री, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड एनी अदर पर्टिकुलर्स विच द पार्टनर में डिसाइड। तो ये सारी चीज़ें उनको रखनी पड़ेगी। अब ऑडिटर शुड रीड द एलएलपी अग्रीमेंट एंड नोट द फॉलोइंग प्रोविजन कि भाई नेचर ऑफ बिजनेस क्या होने वाला है, हर एक पार्टनर ने क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उन लोग को इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, ड्यूरेशन क्या है, फिर बाद में कितना ड्राइंग्स अलाउड है हर एक पार्टनर को, सैलरी, कमीशन एंड एक्सेट्रा क्या है, फिर बोरोविंग्स क्या है एलएलपी की, दोनों राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर के, मेथड ऑफ सेटलमेंट क्या होने वाला है अगर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ हुआ, या भाई इन केस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस बाई पार्टनर का क्या है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी इन केस ऑफ एन एलएलपी। नेक्स्ट आता है भाई कारो 2020। क्या आता है? कारो 2020। आई होप सभी स्टूडेंट ने कारो 2020 का वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। यू हैव अटेंडेड द जूम लाइव लेक्चर्स। जो स्टूडेंट यहाँ पे जेकेसी स्टूडेंट नहीं है दे कैन गो एंड बाय द सिंगल इंडिविजुअल चैप्टर एज वेल, अगर तुमको पूरी चीज़ नहीं चाहिए। बट लेकिन ऑल द जेकेसी स्टूडेंट, आई होप आपने ये जूम लाइव लेक्चर अटेंड किया था फॉर कारो 2020। वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम एक्सपेक्टिंग अ 4 मार्क क्वेश्चन और अ 5 मार्क क्वेश्चन फॉर श्योर इन योर मे 22 एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं जो हम हमारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं फिर देखते हैं क्या ये। मिस्टर अर्जुन was appointed as the engagement partner on behalf of Bishma and Company, a chartered accountant firm, for conducting statutory audit assignment of Sinwar Limited, unlisted public company. Mr. Brijesh, one of the senior engagement team members, was given the responsibility to audit the matters as per Caro 2020, and in connection he made the following observation that may be relevant for reporting as per the said order. One of the plant and equipment taken on a lease by Sinwar Limited was revalued on the basis of the valuation by the registered valuer, and the net carrying value of the plant was changed from 4 crores to 4.5. अब ये हमारा क्लॉज 1 ही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अंदर देखो, याद करो कि रिवैल्यूएशन हुआ था। अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो क्या रजिस्टर्ड वैल्यू ने किया है, और अगर किया है और अगर 10% या उससे ज़्यादा का चेंज है अपवर्ड या डाउनवर्ड्स, तो क्या उसे सही तरह से रिकॉर्ड कर दिया गया है? क्या यहाँ पे चेंज 10% से ज़्यादा है? 4 करोड़ का 10% 40 लाख, यहाँ पे कितना हो गया? 4.45। तो येस, यहाँ पे हमें ये चीज़ रिपोर्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, during the year under consideration, a cash credit limit of 5.5 crores was sanctioned to Sinwar Limited. अब इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सैंक्शन। याद करो, हमने लेक्चर में बोला था सैंक्शन देखना जरूरी है, कितना लिमिट तूने यूज किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। By DMC Bank based on the security of current asset, which was reduced to 4.5 crores after 6 months. In this connection, quarterly returns have been filed by the company with the DMC which are in agreement with the books of accounts. तो भाई एक बार तेरे को सैंक्शन लिमिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो क्या ये क्लॉज का रिपोर्टिंग आएगा? येस। इन्वेंट्री वाज इन क्लॉज 2, तो क्या ये क्लॉज का रिपोर्टिंग आएगा? येस, डेफिनेटली आएगा। तो देखते हैं दोनों के आंसर। पहला वाला, अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 1D of the para 3 of Caro 2020, auditor is required to report whether the company has revalued its property, plant and equipment or intangible assets or both during the year. If so, whether the revaluation done by registered valuer, specify the amount of change if it is greater than 10%. तो यहाँ पे इन द गिवन सिचुएशन चेंज हुआ है तो यस, हमें क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा कि 45 लाख का चेंज हुआ है। सेकेंड, as per the clause 2B of the para 3 Caro 2020, the auditor is required to report during the any point of time during the year the company has been sanctioned the working capital in excess of 5 crores in aggregate from banks or financial institution. फिर अगर है तो वेदर क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट जो फाइल किए हैं वेदर दे आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे अगर देखोगे तो सैंक्शन किया था 5.5 करोड़ का,
ठीक है, विच इज एक्सीडिंग 5 करोड़। फर्दर क्वार्टरली रिटर्न्स हैव आल्सो बीन फाइल द बैंक। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेम चीज़ को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्वार्टरली रिटर्न्स टाइम पे फाइल किए हुए हैं। जस्ट बिकॉज आगे जाके कम हो गया, वो लोग ने कम यूज़ किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सैंक्शन 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हमें इसके बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। You have been appointed as the auditor of Dharmanath and Sons Limited for the financial year 2021 as entity other than the company incorporated under the Companies Act using a fair presentation framework. The appointment has been made in the month of April 21. The financial statement have been prepared by the management in accordance with the accounting standard. The management has introduced a new computerized accounting system for the November 2020 and still in the implementation phase, and thus the management is in the process of rectifying system deficiencies and correcting the errors. At the time of implementation of new system, the earlier system of accounting of receivables had been discarded. The auditor was unable to obtain sufficient appropriate evidence about the entity's accounts receivable and inventory. The possible effects of the inability to obtain sufficient and appropriate evidence are deemed to be both material and pervasive. Right opinion and the basis of opinion to be included in the independent report. तो अगर हम साई ऑब्टेन नहीं कर पाए, मैटर मटीरियल भी है एंड परवेसिव भी है, तो हमें कौन सा ओपिनियन देना पड़ेगा, डिस्क्लेमर। अगर तुम्हें याद हो तो लेक्चर में हम लोग ने हर अलग अलग टाइप का रिपोर्ट पढ़ा था, याद करो। मैंने उसमें बोला था देखो, टाइटल जो भी रिपोर्ट हुआ सेम रहेगा, एड्रेसी जो भी रिपोर्ट हुआ सेम रहेगा, फिर ऑडिटर्स ओपिनियन का फर्स्ट लाइन चेंज होगा, लास्ट लाइन चेंज होगा, बेसिस फॉर ओपिनियन का सिर्फ क्या चेंज होगा, लास्ट लाइन चेंज होगा। तो वहाँ पे वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ये पूरा का पूरा आंसर बहुत कंफर्टेबली लिख सकते हो। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है पब्लिक को डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन बाकी जिन्होंने वो पॉइंट पढ़ा है इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू राइट। तो बेसिस फॉर ओपिनियन में सारी चीज़ें स्टार्टिंग में क्या रहेगी, सेम। एट द एंड ओपिनियन पैराग्राफ में यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, नहीं, क्योंकि भाई हमारे पास सबूत नहीं है। बेसिस फॉर ओपिनियन में भी हमारा क्या होगा, लास्ट लाइन। अच्छा, यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन क्या लिखना था, वी हैव ऑडिटेड नहीं लिखेंगे, वी क्या लिखेंगे, वी वर एंगेज टू ऑडिट। तो फर्स्ट लाइन में चेंज आया और लास्ट लाइन में चेंज आया। वैसे ही बेसिस फॉर ओपिनियन में जाओगे तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट लाइन जहाँ पे हम बोलते थे वी हैव सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वी वर अनएबल टू डिटरमाइन। ठीक है, मतलब क्या हम सबूत ढूंढ पाए क्या, नहीं, इसलिए हम अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी क्या है, जो हम लोग ने रिपोर्ट राइटिंग किया था कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन एज पर 700 कैसे लिखते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन 705 के हिसाब से कैसे लिखते हैं, एडवर्स कैसे लिखते हैं एंड डिस्क्लेमर कैसे लिखते हैं, कृपया करके उसे अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, उसे अच्छी तरह से समझिए। तो कोई भी रिपोर्ट आया तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू राइट द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट अ की ऑडिट मैटर फॉर विच देर आर नो रेलेवेंट डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई अगर कोई रेलेवेंट डिस्क्लोजर नहीं है, फिर भी अगर मेरे को लगता है कि ये मैटर की ऑडिट मैटर है, तो क्या मैं दूंगा। याद करो, हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि दो ही ऐसे सिनेरियो है जहां पे हम की ऑडिट मैटर नहीं देंगे। सबसे पहले तो अगर मेरे को कौन मना कर रहा है, लॉ एंड रेगुलेशन मना कर रहा है, तो मैं नहीं दूंगा। या तो मेरे को लग रहा है कि ये देने का फायदे से ज़्यादा क्या हो जाने वाला है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो इन दैट केस में नहीं दूंगा। पर उसको छोड़ के और कोई भी कारण हुआ तो क्या मैं की ऑडिट मैटर नहीं दूंगा, ऑब्वियसली दूंगा। तो ये दो केसेस में नहीं दे सकता, बाकी सारे केस में दूंगा। तो यहाँ पे भले डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है, बट फिर भी क्या मेरे को की ऑडिट मैटर देना पड़ेगा, डेफिनेटली देना पड़ेगा। नेक्स्ट पूछा गया है, वेयर शुड बी द प्लेसमेंट ऑफ द की ऑडिट मैटर्स सेक्शन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो भाई हम कहाँ पे की ऑडिट मैटर देंगे, उसका इंट्रोडक्शन लाइन क्या होगा, क्या सारी चीज़ें लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो जनरली की ऑडिट मैटर इज रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड आफ्टर द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। अगर समझो कोई गोइंग कंसर्न पैराग्राफ है एज पर 570, तो पहले क्या आ जाएगा, गोइंग कंसर्न, फिर आएगा ये, फिर बाद में अगर कोई एम्फोसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर है तो वो आएगा, फिर आएगा की ऑडिट मैटर। तो देखो क्या आता है, टाइटल, फिर हमारा आता है एड्रेसी, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन। इसके बाद हमारा क्या आ सकता है, ईओएम पैराग्राफ आ सकता है, अदर मैटर पैराग्राफ आ सकता है, फिर गोइंग कंसर्न पैराग्राफ आएगा, इसके बाद क्या आएगा, की ऑडिट मैटर। बट अगर समझो गोइंग कंसर्न पैरा नहीं है, ओएम पैरा नहीं है, ईओएम नहीं है, तो डायरेक्टली किसके बाद आ जाएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट,
Adinath and Associates have been appointed as the statutory auditor of Shikhar Limited for the financial year 2021. Shikhar Limited enters into the frequent transaction with the entities belonging to the promoter and the promoter group, अर्थात related party transaction हो रहे. The company is a listed entity and has to submit a compliance certificate to the stock exchange. The auditor seeks your guidance on the disclosure in respect of the related party transaction एज पर द LODR. तो भाई रिलेटेड पार्टीज के लिए हमें वहाँ पे क्या क्या देना होता है. भाई देखो, रिलेटेड पार्टीज के लिए द लिस्टेड कंपनी शैल सबमिट अ क्वार्टरली compliance report on corporate governance in the format as specified by the board from time to time to the recognized stock exchange within 21 days from the end of quarter. तो हर एक क्वार्टर समाप्त होने के 21 डेज के अंदर हम क्या बता देंगे, कंप्लायंस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. नेक्स्ट, फिर डिटेल्स ऑफ ऑल द मटीरियल ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज शैल बी डिस्क्लोज देयरिन. तो ये जो हम ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं, उस रिपोर्ट में जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए रिलेटेड पार्टी के साथ, वो सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ट्रांजैक्शन वहाँ पे क्या करने होंगे, हमें डिस्क्लोज करने होंगे. द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय द कंप्लायंस ऑफिसर और द CEO ऑफ द लिस्टेड कंपनी. तो ये जो रिपोर्ट है कौन साइन कर सकता है, ये कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट हुआ है तो, अगर वो नहीं है तो एक CEO. कंपनी को क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, द पॉलिसी ऑफ डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑन द वेबसाइट एंड अ लिंक देयर टू शैल बी प्रोवाइडेड इन द एनुअल रिपोर्ट. तो हम रिलेटेड पार्टी के साथ कैसे डील करते हैं इसके बारे में हम वेबसाइट में लिखेंगे और उसकी लिंक साथ ही साथ हम एनुअल रिपोर्ट में भी छाप देंगे कि पब्लिक उसे पढ़ सके. द लिस्टेड कंपनी शैल डिस्क्लोज द ट्रांजैक्शन विद एनी पर्सन और एंटिटी belonging to the promoter or the promoter groups which holds 10% or more shareholding. तो जितना भी हमारा प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे बताना पड़ेगा एज पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. Listed entity within 30 days from the date of publication of the standalone and consolidated financial statement for the half year, disclosure of related party transaction on consolidated basis in the format specified by the relevant accounting standard should be given to the stock exchange. और सेम चीज को अपने वेबसाइट के ऊपर भी डालो. लास्टली क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट द हाई वैल्यू डेट listed entity shall submit disclosure along with the financial standalone for the half year. तो यहाँ पे जहाँ पे हाई वैल्यू डेट लिस्टेड है वहाँ पे हाफ ईयर पे देना पड़ेगा और ऊपर वाले केस में भाई पहले हर 30 डेज पे देना पड़ेगा. ये हमारा क्या हो गया कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स क्या है एज पर द ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ बैंक्स. एक आसान सा क्वेश्चन है बट लेकिन ये इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछ चुका है. इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है इट इज़ अ मॉड्यूल क्वेश्चन. मॉड्यूल के पीछे जो टेस्टियर नॉलेज दिया हुआ है उसके अंदर भी दिया हुआ है. तो प्लीज़ ये क्वेश्चन को कृपया करके इंपॉर्टेंट मार्क करें, आने की पूरी संभावनाएं है. यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ बैंक OM बैंक एंड नेशनलाइज्ड बैंक. OM Bank also deals in providing credit card facilities to its account holders. The bank is aware of the fact that there should be strict control over the storage and the issue of the cards. How will you evaluate the internal control system in the area of credit card operations? तो क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के इंटरनल कंट्रोल के लिए आप क्या क्या देखोगे कि देखो सही तरह से स्टोर किया गया है एंड सही तरह से इशू किया जा रहा है, इसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है. फिर बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम होनी चाहिए जहाँ पे हम मर्चेंट से क्या कर पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे कि सामने वाले क्रेडिट कार्ड वाले ने अपनी लिमिट कितनी यूज़ की हुई है. देयर शुड बी अ सिस्टम टू प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय द मर्चेंट्स ऑफ ऑल सेटलमेंट. फिर बाद में वेरिफिकेशन होना चाहिए. तो ये सारे के सारे चीज़ों को मैं इन डेप्थ यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें हम कर चुके हैं इन द ऑडिट ऑफ बैंक्स. बट लेकिन ये आंसर को भी क्या मार्क कर दिया जाए, इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस. Arham Limited is engaged in the business of insurance for the last 27 years. Kushal and Company, a firm of chartered accountants, are the statutory auditor for this company and have been required to perform the audit of all the divisions and head office for the financial year 2021. At the planning stage, CAK engagement partner has identified outstanding premium and agent balances as an area of focus. तो बताओ भाई ये दोनों चीज़ों का कैसे ऑडिट करोगे. वापस ये इंश्योरेंस कंपनी का एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. आउटस्टैंडिंग प्रीमियम में भी भाई क्या हुआ था,
May 21 के मॉड्यूल में छोटे मोटे पॉइंट्स वो लोग ने ऐड किए थे, और एजेंट्स बैलेंस वाले पॉइंट को भी वो लोग ने कहाँ पे ऐड किया था, May 21। तो ये सारे रेलेवेंट पॉइंट्स वो लोग नए नए जो हमारे अमेंडमेंट्स आए May 21, नवंबर 21 और May 22, उसी में से उठा के क्या पूछ रहे हैं सवाल। तो ये वाली चीज़ भी हम कर चुके कि ये दोनों चीज़ को हम वेरीफाई कैसे करें। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को भी आप क्या करोगे, यहाँ से रिफर करोगे। अब यहाँ पे ऑडिट ऑफ PSU में ये लोग ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इन कनेक्शन ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वर टू असर्टेन द फॉलोइंग: द टोटल कॉस्ट of providing electricity is being recovered by timely submission to the State Electricity Regulation Commission. Tariff orders, sales circulars and a sales instruction were issued timely without any ambiguity. They were implemented in time. फिर metering, billing, collection was managed efficiently and effectively. Monitoring and internal control were efficient. तो यहाँ पे ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें कौन सा ऑडिट करना चाहिए. What kind of audit is referred in the above scenario? Briefly discuss the steps suggested by the auditor in planning such an audit. अब यहाँ पे जब हम पब्लिक सेक्टर यहाँ पे ऊपर तुमको हेडर दे दिया गया तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर में तो क्या था, प्रोप्राइटरी ऑडिट है, परफॉर्मेंस ऑडिट है, तुम आसानी से कर पाओगे. बट एग्जाम में तेरे को आएगा कि इधर मैनेजमेंट ऑडिट जाएगा, इंटरनल ऑडिट जाएगा, फिर ऑपरेशनल ऑडिट जाएगा, तो काफ़ी बार वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है. तो सबसे पहले और तेरा बत्ती जलना चाहिए कि ये क्या है, एक PSU है, अरे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बत्ती जलना चाहिए कि हेडर नहीं भी दिया तो तेरे को समझे PSU है. और PSU में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट. बट लेकिन यहाँ पे हम प्रोप्राइटरी नहीं, हम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और सारी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं. सो अर्थात हमें यहाँ पे कौन सा ऑडिट करना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑडिट. ऑल्सो तेरे को हिंट के नाम पे क्या दे दिया है, डिस्कस द स्टेप्स सजेस्टेड टू द ऑडिटर इन प्लानिंग सच एन ऑडिट. तो परफॉर्मेंस ऑडिट के प्लानिंग के लिए क्या करोगे वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो ये आंसर भी पूरा का पूरा हम वहाँ पे कर चुके हैं. बट लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट और नीचे पूरे स्टेप्स दिए हुए जो हम करेंगे. अब स्टेप्स में यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है एग्जाम सिनेरियो में, इसको तुम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, कट शॉर्ट कर सकते हो, वरना पेपर कंप्लीट होगा नहीं. Next, internal audit, management audit and operational audit. One of the independent directors sought information regarding the appointment of internal auditor for following group companies in accordance with the Companies Act, which certain financial statement amounts are given. अब यहाँ पे दिया गया है हर एक का इक्विटी, टर्नओवर, लोन और पब्लिक डिपॉजिट. अब यहाँ पे बताओ, यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिटर. इंटरनल ऑडिटर किस किस को रखना पड़ता है, अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो तो क्या रखना पड़ेगा, यस. तो यहाँ पे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, रखना ही पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी है. अगर एक पब्लिक कंपनी है तो ईजी तरीका क्या था, मैंने याद रखने के लिए क्या बताया था, तुम क्या बोलोगे, डबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स. डी इज नथिंग बट डिपॉजिट, P is nothing but paid up share capital, B is nothing but borrowing, T is nothing but turnover. अब डिपॉजिट के लिए तुम कितना लिमिट याद रखोगे, 25 करोड़. अब हमारा कोड क्या था, डबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स. हर एक चीज़ को डबल करते जाओ. 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50. 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100. 100 का डबल कितना हो जाएगा, 200. अब ये सारी चीज़ें क्या है, और कंडीशन. अब देखते हैं पब्लिक में. देखो क्या यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल 60 है, क्या ये 50 से ज़्यादा है तो एप्लीकेबल हो गया. टर्नओवर भले 200 से कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लोन्स कितना है भाई, यहाँ पे 100 करोड़ से कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. डिपॉजिट्स 25 करोड़ से कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्या यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, यस हो जाएगा, बिकॉज हमारा इक्विटी कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है. ये और कंडीशन है, एंड कंडीशन नहीं है. प्राइवेट कंपनी में ये लोगों ने क्या बोल दिया है, ऊपर की चीज़ होगी, बट डिपॉजिट और पेड अप शेयर कैपिटल देखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ क्या देखो, बोरोइंग्स. बोरोइंग कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या तो फिर हमारा टर्नओवर कितना होना चाहिए भाई, 200 करोड़ या उससे ज़्यादा. अब प्राइवेट कंपनी में देखो, पेड अप शेयर कैपिटल से कोई फ़र्क पड़ता है क्या, टर्नओवर क्या 200 करोड़ से ज़्यादा है, क्या लोन्स हमारा 100 करोड़ से ज़्यादा है, नहीं. तो क्या यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं. अब यहाँ पे आंसर देखो, लिस्टेड कंपनी, यहाँ पे पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 200 या उससे ज़्यादा, आउटस्टैंडिंग 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, एंड डिपॉजिट्स. तो यहाँ पे इन द गिवन केस ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई आदि लिमिटेड. आदि लिमिटेड कौन था भाई, यहाँ पे
हमारे लिए लिस्टेड कंपनी, उसको एप्लीकेबल होगा। अजीत लिमिटेड को भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके थे कि भाई उसका क्या हो रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल ज़्यादा। पर क्या नेमी लिमिटेड को होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे नेमी लिमिटेड को करने की ज़रूरत नहीं है। क्या समझा सबको ये? यस। नेक्स्ट, शिप्रा recently qualified chartered accountant, started her own practice. One of her friends told her that forensic audit is a new area and has a lot of potential in the terms of professional opportunities and remuneration. तो भाई अच्छा खासा पैसा मिलेगा, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। Seema said that there is nothing new in this. Ultimately, forensic audit is also similar to other audit. तो बोलते भाई सब कुछ सेम है। Do you agree with the views of Seema? Support your views with the relevant explanation. अबे इन शॉर्ट यहाँ पे पूछा क्या क्या है दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश। हम लेक्चर में पढ़ते पढ़ते बार बार मैं बोल चुका था कि ये डिस्टिंग्विश इंस्टीट्यूट बार बार आरटीपी में पूछता है। तो भाई आरटीपी में इतनी बार लगातार आया है तो एग्जाम सिनेरियो में कभी भी आने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे लिखना क्या है कि फॉरेंसिक ऑडिट और अदर ऑडिट के बीच में डिफरेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न के साथ, तुम्हारा फेवरेट, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। मिस्टर अवी, a newly qualified chartered accountant, started his practice and sought clients through telephone calls from his family and friends, almost all of them employed in one or the other retail business. One of his friends, Mr. Ravi, gave him an idea to start online service and give stock certification to traders with cash credit limits in bank. Mr. Avi started the website with a colorful, catchy designs and shared the website on all social media posts and stories and tagged 40 traders of the local community with the caption, क्या कैप्शन डाल दिया भाई, सिंपल ऑनलाइन स्टॉक सर्टिफिकेशन सर्विसेज. Besides, Mr. Avi entered into an agreement with the digital marketer to give him 8% commission on each services procured through him. Discuss if the actions of Mr. Avi are in the light of the professional ethics and various pronouncement. तो भाई तू वेबसाइट बना, जो फॉर्मेट कलर का बनाना है बनाता है तो बना, बट लेकिन मेरे को बता क्या यहाँ पे तू लोगों को टैग कर सकता है, सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट डाल सकता है, या किसी के साथ भाई डिजिटल मार्केटर के साथ क्या ऐसा कमीशन दे सकता है? नहीं। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लॉज 6 तो आ ही जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, क्लॉज 6। तो क्लॉज 6(1) में उसने क्या कर दिया भाई, वेबसाइट के ऊपर बात कर रहा है, तो क्या हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? नहीं। तो वी विल बी गिल्टी। अब यहाँ पे उसने क्या दे दिया है कि भाई 8% कमीशन हम उसको देंगे। इसके बारे में आईसीआई ने कहीं पे जिक्र किया नहीं है, बट लेकिन यहाँ पे तुम साथ ही साथ वो वाले क्लॉज का भी क्या लिख के आओगे, जिक्र करके आओगे। कौन सा क्लॉज आ जाएगा, क्लॉज 2 ऑफ द पार्ट 1 of the first schedule, pays or allows or agrees to pay around directly or indirectly any share, commission or brokerage to any person other than। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये क्लॉज नहीं आएगा। आई वुड सजेस्ट कि वो वाला क्लॉज भी आप क्या करके आओ, लिख के आओ, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटर है उसको हम ऐसा पैसा पे कर सकते नहीं है। नेक्स्ट, CS Sheetal is contesting a central council election of institute. Engages his article assistant for his election campaign, promising him that he will come in contact with influential people, which will help him enhance his career after the completion of his training. Comment on the action of CA शीतल विद रेफरेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो भाई यहाँ पे मेरे को बताओ, क्या हम ऐसा कोई भी काम के लिए उसका काम यूज़ कर सकते हैं? यू विल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ व्हाट, अदर मिसकंडक्ट। तो भाई एक आर्टिकल असिस्टेंट का काम सिर्फ उसके काम के लिए करो, क्या उसको इलेक्शन कैंपेनिंग में और सारी चीज़ों में यूज़ करोगे? नहीं। तो ये हमारे बुक का ही एक क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिव्यूअर, एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर इन केस ऑफ पीयर रिव्यू। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ठीक है। क्यों? बिकॉज पीयर रिव्यू में अमेंडमेंट आ चुका है। तो जिन भी स्टूडेंट ने पीयर रिव्यू का अमेंडमेंट नहीं देखा है, कृपया करके पहले एक बार उसे डेफिनेटली कीजिए। फिर पूछा गया है, रिपोर्टिंग इन केस ऑफ पेरेंट्स ऑडिटर इज नॉट द ऑडिटर ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो अगर भाई मैं पेरेंट का ऑडिटर हूं और कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं हूं, तो भाई यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? 600, जो भी हम कहाँ पे कर चुके हैं, SA 600 में। एंड लास्टली क्या बोला गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द प्लान। तो पहले हमेशा क्या बनता है, स्ट्रैटेजी, फिर क्या बनता है, प्लान। तो ये भी क्वेश्चन क्या है भाई, हम ऑलरेडी कर चुके हैं अंडर आर SA 300 सीरीज, बट फिर भी ये क्वेश्चन को हम एक बार करते हैं। और एक बार यहाँ पे MCQ के लिए ध्यान रखना कि पहले क्या बनता है, स्ट्रैटेजी, और उसके बेसिस के ऊपर क्या बनता है,
प्लान, ये इंस्टीट्यूट बार बार लगातार पूछ चुका है, बट लेट अस गो थ्रू दिस आंसर। द ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर्ड बिफोर द ऑडिट प्लान। ठीक है, जो मैंने बोला पहले स्ट्रैटेजी आता है, फिर क्या आता है, प्लान। द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा प्लान क्या होगा, डिटेल। समझो तुम अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तू पहले स्ट्रैटेजी बनाएगा ना कि मेरे को ऑडिट के लिए कितने दिन चाहिए, कॉस्ट के लिए कितने दिन चाहिए, एफआर के लिए कितने दिन चाहिए, फिर तू क्या बनाएगा, एक डिटेल प्लान। Audit strategy and plan are interrelated because change in one would result into change in another. तो अगर तेरा strategy change तो obviously तेरा plan भी क्या हो जाएगा, change. Strategy provides guidelines for developing the plan. तो भाई यहाँ पे strategy के basis के ऊपर ही तू क्या बनाने वाला है, अपना plan. In establishing the scope and conduct of audit procedure works as a basis of developing a detailed audit plan. A detailed audit plan would include the NTE of the audit procedure. तो हम हमारे plan में क्या लिख देंगे, हमारी पूरी की पूरी NTE. The overall strategy and plan should take into consideration the element of materiality and relationship of the risk and procedures to be adopted. ठीक है, तो अगर हाई मटीरियलिटी है तो मैं डिटेल में चीज़ें चेक करेगा, लो मटीरियलिटी है तो मैं क्या करेगा भाई, टेस्ट चेक करेगा। ये हमारा क्या हो गया, RTP ऑफ May 22। तो इस RTP से हमें समझता ये है कि बहुत सारे सवाल जो इंस्टीट्यूट ने उठाए हैं वो कहाँ से उठाए, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड्स में उठाए हैं ऐसे सीरीज़ में से जो तुम फोकस नहीं करते हो, जैसे कि 200 सीरीज़, 400 सीरीज़, 300 सीरीज़, तो उस सीरीज़ के ऊपर फोकस करना है। सेकेंड, काफ़ी सारे जो अदर चैप्टर्स के क्वेश्चन उठाए वो कोई ना कोई छोटा मोटा अमेंडमेंट था May 21, नवंबर 21 या तो May 22 का, तो कृपया करके सिर्फ May 22 के नहीं बट May 21 एंड नवंबर 21 के भी जो रेलेवेंट अपडेट्स और अमेंडमेंट्स आए थे मॉड्यूल में, वो वाले लेक्चर्स भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए, बिकॉज उसमें सवाल आने के चांसेस ज़्यादा है। प्रोफेशनल एथिक्स में भी काफ़ी सारे उसमें अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स आए थे, तो प्लीज़ वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कृपया करके फॉलो कीजिए एंड फिर ही एग्जाम के लिए जाइए। तो with this I will finally put an end to this particular session. Thank you very much. See you all in the next lecture.